Very good morning, everyone. Today we will be discussing antiplatelet agents. We'll try to learn what are the various antiplatelet agents. Many newer antiplatelet the drugs have came that we will also see. So first of all, antiplatelet drugs are basically useful for the arterial thrombosis. तो आर्टरी अगर आर्टरी में थ्रोम्बस है, आर्टरीज में मेनली प्लेटलेट का रोल होता है. वहाँ पे प्लेटलेट क्लॉट होते हैं, प्लेटलेट क्लॉट बनाते हैं. तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर मोर यूजफुल फॉर द आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस. एंड दिस anticoagulants, what we say anticoagulant, warfarin and heparin, these are more effective for the venous thrombosis. So for the DVT part, the anticoagulants are more effective, and for the arterial thrombosis, like in case of in any cardiovascular disorders, if there is a thrombus, then antiplatelet drugs are more useful. Two things we have to learn here. One is the thromboxane A2 and one is the PGI2. So this you can remember, thromboxane A2 A is for aggregation. So where there is thromboxane A2, where there will be thromboxane A2, that will lead to the aggregation of the platelet. Aggregation means platelet एक साथ आपस में चिपकना. So there will be the aggregation of the platelet. And where there will be the I2 means inhibit aggregation. So अगर PGI2 is there, then it will inhibit the aggregation. If there is more thromboxane A2, it will cause the aggregation of the platelet. Because our drug will act on these, so this is very important to learn. So A2 is for aggregation and I is for inhibit the aggregation. This is basically things what happen when normally inside the blood vessel, if there is no damage in the blood vessel, normally there is no clotting mechanism. Normally the clot does not occur, thrombus did not form. But if there is a vessel injury, then what happens? There is exposure of von Willebrand factor and collagen. That will lead to the adhesion of one platelet, and if one platelet will get adhere, that platelet will activate thromboxane A2. That will activate ADP also. We'll see that ADP. What is ADP? Activation of integrin. This will further activate the thromboxane receptor and interaction with this ADP का receptor ये P2Y1 and P2Y12 and further बाद में जाके प्लेटलेट एडेशन एंड एग्रीगेशन होता है. तो अगर वेसल की इंजरी होती है तो ये एक्टिविटी है. एक और चीज होती है एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर, मतलब फैक्टर थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है. एंड थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होता है, वो थ्रोम्बिन भी प्लेटलेट पे रिसेप्टर होता है, थ्रोम्बिन का भी वहां पे एक्टिवेट करके प्लेटलेट को एक्टिवेट. दीज ऑल थिंग्स आर एक्टिवेटिंग द प्लेटलेट. वंस द प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड, इट विल बाइंड टू द जहां पे इंजरी हुई है वहां पे बाइंड करेगा एंड और भी प्लेटलेट आपस में आके दे विल एग्रीगेट देमसेल्फ. सो ये मैकेनिज्म होता है. तो what we can do is we have the drug which is inhibiting the thromboxane A2 and that drug is the aspirin. We have the drug which is inhibiting this receptor, clopidogrel is the drug, and we have the drug which is acting on this PAR receptor. We'll see that PAR. This is the PAR antagonist. Another more एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम है. विल सी दिस डायग्राम. इसमें ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है. दीज आर द टू प्लेटलेट्स एंड एक प्लेटलेट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. जब ये सब चीजें एक्टिवेट होके फिर लास्ट में ये GP2B3A जो है वो एक्टिवेट होता है. तो एट द लास्ट ये एक्टिवेट होता है. ये देखिए आप इधर, ये एक्सपोज कोलेजन है. यहाँ पे जैसे इंजरी हुई एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है. जैसे मेम्ब्रेन जो लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ये एनसेड में पढ़ा था, बाइलेयर लिपिड की होती है. वो बाद में एराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोस्टाग्लैंडिन दैट वी हैव सीन देयर. एराकिडोनिक एसिड बना, एराकिडोनिक एसिड से PGH2 थ्रोम्बोक्सिन A2 तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जब यहाँ पे बना तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट को. थ्रोम्बोक्सिन A2 का रिसेप्टर है, प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है और प्लेटलेट जाके आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाती है. वैसे ही जब PGI2 रिलीज होता है, PGI2 ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है और साइक्लिक AMP इनहिबिट करता है दिस. अगर ये ADP ज्यादा रहेगा, ADP का भी रिसेप्टर होता है, ADP अगर ज्यादा रहेगा तो भी प्लेटलेट एक्टिवेट होती है. तो ADP से भी प्लेटलेट एक्टिवेट हो रही है,
PAR थ्रोम्बिन का रिसेप्टर है PAR. PAR is not the platelet activated receptor, it's the protease activated receptor. थ्रोम्बिन से भी एक्टिवेट हो रही है. तो और we can here inhibit this ADP binding of ADP with the help of clopidogrel. एस्प्रिन हमारे पास है जो कि COX-1 इनहिबिटर है, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाएगा. तो we have to limit these things थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड ADP ताकि ये ना बने. ये नहीं बनेगा तो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा. रिसेप्टर पे बाइंड प्लेटलेट कितने जो रिसेप्टर है प्लेटलेट पे रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा तो GP2 भी एक्टिवेट नहीं होगा. अल्टीमेटली GP2 ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है. तो वी हैव द ड्रग्स आल्सो हियर आल्सो ड्रग जहाँ पे हम इन GP2B3A को एग्रीगेशन मतलब कंबाइन होने से रोक सकते हैं. तो वी हैव द एफसिक्सिमैब, एफ्टिफिमेटाइड एंड टेलोफिमाब. सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स. तो व्हाट वी कैन टारगेट हियर थ्रोम्बोक्सिन A2 बाय inhibiting the COX-1 enzyme by giving the aspirin. We can target here ADP by inhibiting the ADP. It will inhibit the binding of ADP to the ADP receptor. We can target here ये एक फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम होता है जहाँ साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को जब हम इनहिबिट कर देते हैं साइक्लिक AMP ज्यादा होगा. साइक्लिक AMP मोर साइक्लिक AMP will lead to the inhibition of formation of ADP. ओके, तो दैट्स व्हाई ये ऐसे एक्ट करता है. तो हमें ADP को तो कम ही करना है ना. ADP ज्यादा रहेगा तो इट विल बाइंड टू द ADP रिसेप्टर. अगेन वही प्लेटलेट एक्टिवेशन तो प्लेटलेट क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन विल बी देयर. तो डाइपैराडामोल है फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर. We have this drug also and we have the GP2B3A receptor का antagonist भी है हमारे पास एफसिक्सिमैब, एफ्टिफिमेटाइड एंड टेलोफिमाब. So these will be the mechanism of action that so we have how one is more the thrombin. ये लेटेस्ट में है थ्रोम्बिन भी बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे दैट इज द PAR रिसेप्टर और वो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट को फिर थ्रू बाइंडिंग दिस. ठीक है. एंड PGI2 का भी इनहिबिटर है हमारे पास बट नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड हियर एज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स. सो व्हाट आर द वेरियस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वी हैव? फर्स्ट लेट अस सी द क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट वी आर इनहिबिटिंग द थ्रोम्बोक्सिन synthesis by inhibiting the COX-1 enzyme that aspirin is doing by inhibiting the COX enzyme, cyclooxygenase enzyme. So second we are inhibiting this phosphodiesterase. We have seen in the previous diagram phosphodiesterase inhibit होगा तो cyclic AMP will enhance, dipyridamole and sevastozole will be there. Third P2Y12 receptor blocker. This is very important drug. Clopidogrel, ticlopidine, prasugrel, ticagrelor, kenagrelor. These are drugs in P2Y12 also known as ADP. That is the same ADP receptors. ADP के receptors है P2Y12. Third group, फिर fourth group GP2B3A का antagonist है. We have एफसिक्सिमैब, एफ्टिफिमेटाइड, टेलोफिमाब. और कौन से ग्रुप है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, PGI2 के एनालॉग्स, इपोप्रोस्टनॉल, इलोप्रोस्ट एंड PAR1 जो प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर है जहाँ पे थ्रोम्बिन बाइंड कर रहा था. थ्रोम्बिन इज बाइंडिंग टू PAR1 receptor, volapixar and etapexar. So these are the drugs what we have as an antiplatelet or antithrombotic agents. So coming to the first, dipyridamole. It's a phosphodiesterase inhibitor. We have seen there if they are inhibiting the phosphodiesterase तो cyclic AMP कम बनेगा. तो इंक्रीज साइक्लिक AMP बढ़ता है. फॉस्फोडाइस्ट्रेस जब इनहिबिट करते हैं साइक्लिक AMP बढ़ रहा था और वो बाद में ADP को आपको कम बना रहा था. तो increase cyclic AMP inhibiting the enzyme phosphodiesterase, blocking the uptake of adenosine. These are the two mechanism by which dipyridamole. But dipyridamole यहाँ पे ज़्यादा commonly नहीं use होती. Dipyridamole anti-angiral ज़्यादा commonly है. तो weak antiplatelet है usually combined with the low dose aspirin. Usually we have to combine with the low dose aspirin. तो dipyridamole not very commonly used. Preferably used in combination with warfarin. So it is not used alone. It is used with the some other anticoagulant और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स. कॉक्स इनहिबिटर्स में एस्पिरिन ये वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई लो डोज एस्पिरिन इन एज अ एंटीप्लेटलेट. एस्पिरिन इज अ NSAID. एस्पिरिन बिलोंग्स टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम. So inhibits the by inhibiting the COX enzyme, it inhibits the production of thromboxane A2, and we have seen the thromboxane A2 is responsible for the adhesion of the platelet, activation of the platelet, aggregation of the platelet, thereby inhibiting the platelet aggregation. लेकिन और NSAID भी तो है. Aspirin is also NSAID, but we have the other NSAID also, which is not an antiplatelet. Why this? Because other NSAIDs reversible होते हैं.
Other NSAIDs are reversible. Aspirin is irreversible drug. Other NSAIDs are reversible और दूसरा other NSAIDs cannot acetylate the enzyme also. Aspirin can acetylate the enzyme. Okay. And one more thing you have to remember that platelets do not have the nucleus. Platelets do not have the nucleus. If that do not have the nucleus मतलब एक बार एंजाइम इनहिबिट हो गया, एक बार प्लेटलेट इनहिबिट हो गई, तो जितनी प्लेटलेट की लाइफस्पैन है तब तक काम करेगा, बिकॉज यू डोंट हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं है तो एंजाइम नहीं बन सकता नया. ठीक है. तो एक्शन ऑफ एस्पिरिन इज परमानेंट, तभी लिखा गया परमानेंट, लास्टिंग फॉर लाइफ टाइम ऑफ द प्लेटलेट, बिकॉज प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता. एस्पिरिन इज एक्टिंग ऑन एंजाइम, इट इज इनहिबिटिंग द एंजाइम, एंड एंजाइम फिर से बन सकता है लेकिन जिसमें न्यूक्लियस हो. यहाँ पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इट कैन नॉट फॉर्म द एंजाइम. ठीक है. तभी जब तक नई प्लेटलेट नहीं बनेगी, नई प्लेटलेट आएगी, नई न्यूक्लियस आएगा, उसमें 7 to 10 डेज लगता है एक प्लेटलेट को फॉर्म होने में. तो इसके लिए एक्शन इसीलिए 7 to 10 डेज. तभी वी ऑलवेज से दैट वी हैव टू स्टॉप दिस एंटी प्लेटलेट ड्रग 7 to 10 डेज बिफोर द सर्जरी, क्योंकि एक्शन परमानेंट है. तो 7 to 10 डेज बिफोर द सर्जरी स्टॉप करना पड़ता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई लो डोज एस्पिरिन. तो ये चार्ट से समझ में आ जाएगा. ये वाला हमको तो पता है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन होती है, इंजरी होती है, एराकिडोनिक एसिड एंड दैट थ्रोम्बोक्सिन एंड लाइपोऑक्सीजिनेज एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्टिवेट होता है. यहाँ पर हम वी आर डिस्क्राइबिंग द साइक्लोऑक्सीजिनेज, बिकॉज साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या इंपॉर्टेंट है. COX-1 एंड COX-2 दो एंजाइम होते हैं. COX-1 एक्टिवेट होता है तो बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन A2, एंड COX-2 एक्टिवेट होता है तो प्रोस्टासाइक्लिन बनता है. जब लो डोज एस्पिरिन देते हैं तो वी आर दैट इनहिबिट्स ओनली COX-1 नॉट द COX-2. लेकिन अगर हाई डोज देते हैं तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 दोनों इनहिबिट होता है, उसके कारण थ्रोम्बोक्सिन A2 भी और प्रोस्टासाइक्लिन दोनों. अब आप ये देखो, ये आपको पता था, ए मतलब एग्रीगेशन इनहिबिट होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन इंडक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, और प्रोस्टासाइक्लिन रिस्पांसिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन से. आई मतलब इनहिबिट द एग्रीगेशन. ठीक है. तो दोनों इनहिबिट कर दे रहा है हाई डोज एस्पिरिन, दैट्स व्हाई वी गिव द लो डोज एस्पिरिन ओनली. एक कारण और होता है, वन रीजन इज मोर, कि एस्पिरिन जब एस्पिरिन का मैकेनिज्म आ जाता है बिफोर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर में एंटर करने से पहले ही मैकेनिज्म एंटीप्लेटलेट होता है उसका, इसीलिए लो डोज से भी काम हो जाता है. दीज आर द टू थिंग्स. लो डोज कितनी है? 50 to 350 मिलीग्राम पर डे. दिस इज द लो डोज. ठीक है. द अनदर वन इज द P2Y12 ब्लॉकर. इसमें कई सारे हैं, क्लोपिडोग्रेल है, टिक्लोपिडीन है, प्रासुग्रेल, टिकाग्रिलॉल, केनाग्रिलॉल, ये सब है. पहले टिक्लोपिडीन देखते हैं. टिक्लोपिडीन की इंपॉर्टेंस, टिक्लोपिडीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है न्यूट्रोपीनिया. एनी इज फॉर टिक्लोपिडीन, लास्ट में एनी है, एनी इज फॉर न्यूट्रोपीनिया, क्योंकि ये इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है ये बहुत डेंजरस एडवर्स इफेक्ट है. और इरिवर्सिबली ब्लॉक कर रहा है, जैसे एस्पिरिन ब्लॉक करता था वैसे इरिवर्सिबली ये भी ब्लॉक करता है. एडीपी इंड्यूस्ड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, इट हैज बीन सुपरसीडेड बाय अदर P2Y12 इनहिबिटर. बिकॉज ऑफ दिस एडवर्स इफेक्ट इसको टिक्लोपिडीन की जगह क्लोपिडोग्रेल ज्यादा यूज होती है. आपने सुना जो है एस्पिरिन के साथ क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन बहुत आता है. ठीक है. क्लोपिडोग्रेल भी सेम ग्रुप की है, P2Y12 इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्लोपिडोग्रेल भी है, और विद स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन बट एक्शन परसिस्ट फॉर अबाउट 6 डेज. अगेन प्लेटलेट का जैसे हाफ लाइफ होता है 6 to 7 डेज, तो 6 डेज तक एक्शन इसका भी रहेगा. दीज आर द इंडिकेशन. एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वहाँ यूज करे जाते हैं जहाँ पर थ्रोम्बोसिस जहाँ होती है. जैसे MI के बाद थ्रोम्बोसिस हो सकती है, माइक्रोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद हार्ट स्लो हो जाता है तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. स्ट्रोक बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, थ्रोम्बस जहाँ पे क्लॉट बन रहा है, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर यूज. ठीक है. स्लाइटली फेवरेबल टॉक्सिसिटी प्रोफाइल. लेकिन क्लोपिडोग्रेल से बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है CYP2C19. C फॉर क्लोपिडोग्रेल, C फॉर CYP2C19, याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल का इंटरेक्शन CYP2C19 से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोपिडोग्रेल के साथ PPI जब दिया जाता है, PPI भी CYP2C19 से ही मेटाबोलाइज होती है. अब देखिए CYP2C19 इनहिबिशन बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये इंटरेक्शन बहुत पूछा जाता है, क्लोपिडोग्रेल विद PPI. अगर किसी को पता ना हो और PPI भी साथ में ले रहा हो क्लोपिडोग्रेल के साथ, तो क्या होगा? इट में रिड्यूस द कन्वर्जन टू द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ क्लोपिडोग्रेल व्हिच में कंट्रीब्यूट टू द लोअर एफिकेसी ऑफ क्लोपिडोग्रेल. मतलब कि PPI जो होगा क्लोपिडोग्रेल को एक्टिव नहीं होने देगा, तो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट जो है उसका
कम हो जाएगा, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट नहीं आएगा व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विद पीपीआई। तो पीपीआई के साथ क्लोपिडोग्रेल को देंगे आप तो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट हो सकता है क्लोपिडोग्रेल का ना आए, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन मेटाबॉलिज्म बाय CYP2C19। ठीक है, पीपीआई CYP2C19 को इनहिबिट करती है, दैट्स व्हाई। और क्लोपिडोग्रेल मेटाबोलाइज होता है बाय CYP2C19 से एक्टिव मेटाबोलाइट में, प्रोड्रग है, एक्टिव में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस CYP2C19। ठीक है, प्रासुग्रेल, प्रासुग्रेल भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल अगेन P2Y12 ब्लॉकर, लेकिन मोर पोटेंट है, लेकिन प्रासुग्रेल ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू क्लोपिडोग्रेल, दिस P2Y12 सब में प्रासुग्रेल ज़्यादा अच्छी है। बट एक प्रासुग्रेल के साथ भी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, प्रासुग्रेल का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता पीपीआई के साथ, CYP2C19 से भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल इसकी अच्छी है प्रासुग्रेल की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसका भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि इस्चेमिक स्ट्रोक में नहीं दिया जाता प्रासुग्रेल, और हेमोरेज कराता है प्रासुग्रेल, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ज़्यादा कराता है, मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इंक्लूडिंग इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज। तो अगर इस्चेमिक स्ट्रोक या सेरेब्रल स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो उसमें प्रासुग्रेल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट अदरवाइज प्रासुग्रेल इज वेरी गुड ड्रग। तब टिकाग्रिलॉल और कैलाग्रिलॉल ये दो ड्रग हैं, इन पे ये याद रखना पड़ेगा हमको कि ये रिवर्सिबल है। बाकी सब इतना पढ़ रहे थे हम, एस्पिरिन पढ़े, क्लोपिडोग्रेल पढ़े, टिक्लोडिपिन पढ़े, टिक्लोपिडिन पढ़े, सब पढ़े, लेकिन सब इरिवर्सिबल थे। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट को। तो दीज आर नॉट द प्रोड्रग, डायरेक्टली एक्टिवेट होते हैं तो कोई इंटरैक्शन से कोई मतलब नहीं है। रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ P2Y12, तो आर से याद रखना पड़ेगा हमें कि रिवर्सिबल इनहिबिटर है। फास्टर ऑनसेट एंड क्विकर ऑफसेट ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ इसकी 12 आवर्स, बहुत जल्दी काम करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट तो है नहीं, तो जल्दी काम करते हैं। साइड इफेक्ट डिजनेस, नाउजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ज्यादा साइड इफेक्ट्स। टिकाग्रिलॉल ओरल है, कैलाग्रिलॉल लेकिन आईवी है। टिकाग्रिलॉल इज ओरल अवेलेबल एंड कैलाग्रिलॉल इज द आईवी इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, गेट रैपिडली डीएक्टिवेटेड इन प्लाज्मा, इसीलिए इसको आईवी दिया जाता है। तो दिस इज द टिकाग्रिलॉल एंड दिस इज द कैलाग्रिलॉल। टिकाग्रिलॉल ओरल एंड कैलाग्रिलॉल आईवी के फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पोटेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेप हो रहा है वो GP2B3A को इनहिबिट करना है। अल्टीमेटली GP2B3 एक्टिवेट हो रहा था और दो प्लेटलेट आपस में कंबाइन हो रही थी, तो GP2B3A इनहिबिटर इज द मोस्ट पोटेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग, दैट्स व्हाई। क्योंकि अल्टीमेट स्टेप GP2B है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को 3A ही एक्टिवेट होता है, जो कि एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट आपस में कंबाइन होती है। तो GP2B3A इज एन एडेसिव रिसेप्टर through which agonists like collagen, thrombin, thromboxane A2, ADP, like we have seen all these, finally will induce the platelet aggregation. Thus, GP2B3A antagonist, this will block the aggregation, which is induced by all platelet agonists. So, this is a very important and very effective drug, GP2B3 inhibitor, and we have, like you can see with this diagram, this is the platelet, and all the platelets are combining, that causing the platelet aggregation. If we are giving the GP2B3A receptor antagonist, that it will bind on this platelet और फिर ये combine आपस में नहीं हो पाएंगे, they will not be able to combine, तो platelet aggregation inhibit हो जाएगा। We have the Efiximab, Eftifibatide and Tirofiban, ये तीन ड्रग हैं we have in the GP2B3A receptor antagonist. ये Efiximab, like MAB is the monoclonal antibody, it is ending with the MAB, monoclonal antibody, तो chimeric monoclonal antibody है और directed against 2B3A receptor. So if we have, this is very good drug, Efiximab, if we are giving, so it will inhibit all the previous step, thromboxane A2, ADP, जो भी था सबको inhibit कर देगी। Also bind to vitronectin receptor, but we have to see the differences between Efiximab, Eftifibatide and Tirofiban. Efiximab is non-selective because it is acting on vitronectin receptor B, but Eftifibatide and Tirofiban selective for GP2B3A. Short duration है, but effect remains up to 12 to 24 hours due to long platelet binding T-half. Duration short है, but effect will remain up to 12 to 24 hours. ठीक? This is opposite in Eftifibatide. We will see that. Given as IV bolus, it's a monoclonal antibody, it's a protein, so IV bolus followed by infusion. Indicated in adjuvant to percutaneous coronary intervention. Indicated in preventing restenosis. Again, where there is a thrombus, वहाँ पे indicated है. Recurrent MI, so we have to stop that. Side effect is a bleeding, thrombocytopenia, decrease in the platelet count. Eftifibatide is
another GP2B3A receptor, but it is more specific. It is not acting on the vitronactin receptor. Less effective antiplatelet है. क्यों? अब it is acting on only GP2B3, not vitronactin, इसीलिए less effective है. सबसे अच्छी abciximab है in GP2B3A receptor antagonists. Long duration TR 2.5 hour, but effect is short due to short platelet binding TR. तो उसकी प्लेटलेट की बाइंडिंग ज़्यादा थी, इसीलिए इफेक्ट देर तक था. Here the effect is short. Elimination is through kidney. Eptifibatide is eliminated. Eptifibatide, teriflunomide, both are eliminated through kidney. But abciximab is not eliminated through kidney. Non-renal elimination है. Used in coronary artery disease and coronary angioplasty. Teriflunomide is similar to eptifibatide. Selectively inhibit GP2B3A. It is not acting on vitronactin receptor. The long duration, but effect is short. Due to short platelet binding TR, it is binding on the platelet for the less time. Eliminated through the kidney and usually used with warfarin and heparin. So now come to the differences. This you have to remember. Specific for GP2B3A receptor कौन है? Abciximab, because it is binding. Abciximab is not specific because it is binding on the vitronactin receptor also. Eptifibatide and teriflunomide is specific. It is binding on only GP2B3A. प्लाज्मा हाफ लाइफ एब्सिक्सिमैब की शॉर्ट होती है, छोटी होती है. एप्टिफिबाइड टिरोफिमैब की लॉन्ग होती है, लेकिन प्लेटलेट में कितनी देर तक बाइंड रहती है. हाफ लाइफ इज दिस थिंग. प्लेटलेट में कितनी देर तक बाइंड रहती है, तो देर तक बाइंड रहती है, तो लॉन्ग डेज तक. तो यहाँ पे प्लेटलेट में शॉर्ट सेकेंड, मतलब प्लेटलेट में कम देर तक बाइंड रहती है. मतलब इफेक्ट जो होगा एब्सिक्सिमैब का देर तक रहेगा, एप्टिफिबाइड का कम देर तक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज इनहिबिटिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन ना. एलिमिनेशन एब्सिक्सिमैब का ओनली एब्सिक्सिमैब का नॉन रीनल है, एप्टिफिबाइड एंड टिरोफिमैब का रीनल एक्सेक्शन. वी हैव सीन दैट कि एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी. दिस इज द लास्ट ड्रग वोरापेक्सार. वोरापेक्सार न्यू ड्रग है. प्लेटलेट थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? थ्रोम्बिन का काम होता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, लेकिन थ्रोम्बिन का ये भी काम है कि थ्रोम्बिन आके बाइंड करता है प्लेटलेट पे और प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है. जब प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है. सिंपल सा यही फंडा है. थ्रोम्बिन जैसे बाइंड करता है वैसे ही थ्रोम्बोक्सिन E2 बाइंड करता है, वैसे ही ADP आगे बाइंड करता है. जितनी भी चीजें आगे प्लेटलेट पे बाइंड करी, प्लेटलेट विल गेट एक्टिवेटेड एंड अगेन इट विल कॉज द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट. दिस इज द मैकेनिज्म. तो वी आर इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ थ्रोम्बिन टू द प्लेटलेट एक्टिवेटेड. दिस इज नॉट प्लेटलेट, दिस इज द प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर. Inhibiting the PAR. Okay, so we have the Vorapexar, Etapexar. These are the drugs what we have. So it's a competitive antagonist of PAR1, acting PAR1 and inhibits the thrombin-induced platelet aggregation. So thrombin is not binding into the this. This has a rapid onset of action and circulating half-life of 3 to 4 days. लेकिन इसका भी इफेक्ट 4 वीक तक रहता है. तो just you have to know. मेटाबोलाइज CYP3A4 से होता है. तो जो भी CYP3A4 का इनहिबिटर या इंड्यूसर का तो इसके भी ड्रग इंटरेक्शंस होंगे. जैसे क्लोपिडोग्रेल का होता था CYP2C19 से, यहाँ पे ये वोरापेक्सार का CYP3A4 से. तो क्लोपिडोग्रेल का वी हैव टू रिमेंबर CYP2C19 से. थेरेपेटिक यूज्ड जनरली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल. तो नॉट यूज्ड अलोन. एंड एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग, अगेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग because it is antiplatelet, can increase the risk of bleeding, contraindicated in patient with intracranial bleeding. Like we have the one more drug was there which is contraindicated in patient with intracranial bleeding, and that was prasugrel. Contraindicated, prasugrel भी contraindicated in intracranial bleeding में, ये भी contraindicated है intracranial bleeding में. Okay, thank you.